Hi everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Arpita Sharma, your educator, and today we are going to start decoding the Union Budget 2021. आज की क्लास में हम यूनियन बजट 2021 को डिकोड करने जा रहे हैं. एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन एज वेल दैट वी आर गोइंग टू डिकोड द बजट इन 2 पार्ट्स. हम ना 2 पार्ट्स में बजट को डिकोड करेंगे. दिस इज पार्ट 1 दैट वी आर गोइंग टू डिकोड टुडे. ये आज पार्ट 1 है जो हम डिकोड करने जा रहे हैं, ठीक है. एंड पार्ट 2 विल बी डिकोडेड आफ्टर द पार्ट 1 इज अपलोडेड. एक बार पार्ट 1 अपलोड हो जाए, आप उसको रिवाइज कर लें, उसके बाद पार्ट 2 को हम डिकोड करेंगे. 2 पार्ट्स में डिकोड करेंगे तो आपके लिए समझना भी ईजी हो जाएगा, ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट. Now before we start the budget decoding class, here's a small announcement for all of you. As you all know that Unacademy has launched Unacademy Combat, which is India's most competitive gamified UPSC CSE battle. Okay, and in this battle you are going to participate on 7th of Feb 2021 at 11 AM in the morning. 7 फरवरी 11 बजे सुबह मॉर्निंग में आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जिसके अंदर ऑल इंडिया रैंक आपको मिलेगी. इंडिया के लैक्स ऑफ लर्नर्स आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दिस कॉम्बैट, and here you stand a chance to win amazing prizes. Like if you score rank 1 to rank 3, then you are going to get free 3-month UPSC CSE GS Plus subscription on Unacademy Plus. If you are scoring from rank 4 to rank 150, you are going to get ₹1,000 Amazon vouchers, right? So you can stand a chance to win these amazing prizes if you participate in this combat. Now in this combat you will see that 45 minutes time will be allocated to you. 60 questions will be there, 13 challenges you have to face. There will be 6 sections subject wise, relative scoring, and it is conducted on alternate Sundays, right? So what you have to do is go on to the Unacademy's learning app, then select the goal as UPSC CSE, and then what you have to do is you have to go into the test section. यहाँ पर नीचे ना टेस्ट सेक्शन होगा, उस पर जाना है ऐप पर. उसके बाद क्लिक ऑन दी Unacademy Combat. यूज दिस कोड अर्पिता10 टू इनरोल इन दिस कॉम्बैट फ्री ऑफ कॉस्ट. इस कॉम्बैट में फ्री ऑफ कॉस्ट इनरोल करने के लिए आप ये कोड यूज कर सकते हैं अर्पिता10. All right, so I've given you the link also in the description box below the video. वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक भी दिया हुआ है. फटाफट से इनरोल कर लीजिए. 7th Feb 2021 11 AM in the morning. Okay, do not forget. चलो let's start decoding the budget then. So now when we talk about budget, जब हम बजट की बात करते हैं, the question is what exactly is a budget. सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि भाई ये बजट exactly है क्या. So as you know that budget is a report. Okay, it is a report that is presented by the government. कौन रिपोर्ट प्रेजेंट करता है? Presented by the government. गवर्नमेंट इसको प्रेजेंट करती है, इस रिपोर्ट को, ठीक है. Now it is a report depicting what, showing what. ये किस चीज की रिपोर्ट है, क्या दिखाती है? It shows the government finances. गवर्नमेंट के जो फाइनेंस होते हैं ना, ये उसको शो करती है. इट शोज द गवर्नमेंट फाइनेंसेस. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट गवर्नमेंट फाइनेंसेस, फाइनेंसेस इंक्लूड, it include the revenues and it also include the outlays. ये outlays भी include करता है, expenditure, cost and revenues भी include करता है. So when we summarize budget, what is budget? अगर हम summarize करें तो क्या है? It can be defined, write it down, as the most comprehensive report. It is the most comprehensive report of government's finances, of the government finances, ठीक है, in which you can write, in which the revenues from all sources, direct tax, indirect tax, direct sources, indirect sources, from all the sources, कोई एक सोर्स नहीं है, सारे सोर्स हैं, ठीक है, from all the sources, and the outlays for all activities are consolidated, ठीक है, are consolidated. तो सभी सोर्सेज से और सभी एक्टिविटीज से सारे आपके इनकम, सारी रिसीट, सारे आउटलेस कंसोलिडेट इसके अंदर किए जाते हैं. दे आर कंसोलिडेटेड ओवर हियर, ठीक है. पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक. सो दिस इज बजट, इसको हम कहते हैं बजट, ठीक है. मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट और रिपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट्स फाइनेंस इन विच रेवेन्यूज फ्रॉम ऑल सोर्सेज, आउटलेज फॉर ऑल एक्टिविटीज. आउटलेज मतलब जो एक्सपेंडिचर हमें सारी एक्टिविटीज पे करना है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हेल्थ केयर हो, ठीक है, दे आर कंसोलिडेटेड. पॉइंट क्लियर हो गया. सो इन सिंपल टर्म्स इट इज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सिंपल टर्म्स में क्या है ये बजट? ये एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ऑफ द रेवेन्यू एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट.
गवर्नमेंट की रेवेन्यू, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर का एक सिंपल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये, ठीक है। ये तो हो गई बेसिक डेफिनेशन ऑफ बजट। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन। इफ समबडी आस्क्स यू व्हाट इज बजट, किसी को समझाना हो कि बजट क्या है, तो ये बेसिक इसकी डेफिनेशन है। द सेकंड पॉइंट ओवर हियर इज द टर्म बजट, इज इट मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? येस और नो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। क्या बजट टर्म कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है? नो, इट इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देन व्हाट इज मेंशन्ड? क्या मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में? द स्टेटमेंट दैट इज मेंशन्ड इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट है जो कि मेंशन्ड है आपका कॉन्स्टिट्यूशन में। इंस्टेड ऑफ बजट दे हैव रिटन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, ठीक है। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ सकता है, दे कैन आस्क यू स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। सो दे विल राइट द टर्म बजट इज मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नो, the corresponding term annual financial statement is mentioned, okay, and that is under which article? Under article 112। किस आर्टिकल के अंदर है? आर्टिकल 112 के तहत मेंशन्ड है, ठीक है। सो व्हाट नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट दे कैन आस्क यू इज व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स? कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स क्या है, ठीक है, विच मेक बजट नेसेसरी। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में जब तक नहीं होगा तब तक कोई चीज पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं की जाती, ठीक है। But if something is mentioned constitutionally, then only it is discussed in the parliament. So what are the constitutional requirements which makes the budget necessary? जिसकी वजह से बजट इंपॉर्टेंट हो जाता है पास करना। So first is article 265। पहला है article 265। Now this article says, write it down, it says provides that no tax shall be levied or collected except by authority of law। दिस स्टेटमेंट मेक्स बजट नेसेसरी, क्योंकि स्टेटमेंट में दिया है कि कोई टैक्स तब तक लेवी नहीं किया जाएगा या कोई टैक्स तब तक कलेक्ट नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, जब तक लॉ नहीं कह देता या जब तक लॉ की पार्लियामेंट की अप्रूवल नहीं मिल जाती। बेसिकली यू कैन से दैट ओवर हियर द टैक्सेशन नीड्स पार्लियामेंट्री अप्रूवल, ठीक है। टैक्सेशन के लिए आपको पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए, तो इसके लिए बजट नेसेसरी हो जाता है टू बी प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ द पार्लियामेंट। देन ओनली यू विल गेट द अप्रूवल एंड देन ओनली यू कैन लेवी टैक्स ऑन पीपल, राइट। जब तक पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं होगी तब तक आप टैक्स तो ले ही नहीं सकते। आर्टिकल 265 में लिखा है ये। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। व्हाट डज आर्टिकल 265 से? दैट टैक्सेशन नीड्स पार्लियामेंट्री अप्रूवल। फॉर पार्लियामेंट्री अप्रूवल वी हैव टू प्रेजेंट द बजट, ठीक है। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया? If this point is clear, please let me know so that we can move forward, ताकि हम आगे बढ़ सकें, ठीक है। Now next provision in the constitution is article 266। ये आपका दूसरा provision constitution में, ठीक है। Now this article provides that no expenditure, ये article बोलता है that no expenditure can be incurred, कोई भी expenditure नहीं कर सकती government, can be incurred except इसको अंडरलाइन कर लेना, एक्सेप्ट विद द ऑथराइजेशन ऑफ द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर के परमिशन के बिना, उनके ऑथराइजेशन के बिना, उनकी सहमति के बिना कोई एक्सपेंडिचर नहीं किया जा सकता, कोई खर्चा नहीं किया जा सकता। दिस वर्ड इज एक्सेप्ट, ओके। So no expenditure can be incurred if there is no authorization or permission from the legislature। अब इसका मतलब क्या है? What does this statement means? It means that expenditure needs approval of parliament। expenditure के लिए भी आपको parliament की approval चाहिए होगी। So if you have any outlay for any purpose, you need parliamentary approval, and then for that you have to present the budget, that is a report of your income and expenditure, okay। Then the next important article which makes budget necessary is article 112। ये तो आपका बेसिक आर्टिकल हो गया, आर्टिकल 112। इसके अंदर कहा गया है, it is saying that president shall in respect of every financial year cause to be laid before the parliament annual financial statement।
यानी कि प्रेसिडेंट हर फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, हर फाइनेंशियल ईयर के रिस्पेक्ट में, ठीक है, उनके आगे हमें एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करना ही होगा कि आपने पूरे इस साल में कितना प्रेडिक्शन किया है कि कितना खर्चा होगा, कितने आपका रिसीट आएगा, ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। तो आपको दोनों चीजों का एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करना है। अब यहाँ पर कॉमन सेंस है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैंने आपको यही बता दिया था, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, इट इज अ रिपोर्ट ऑफ बोथ एक्सपेंडिचर एंड इनकम, ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर दोनों का ही ये क्या कह सकते हो आप, रिपोर्ट है, डॉक्यूमेंट है। और आर्टिकल 266 में हमने सिर्फ एक्सपेंडिचर की बात की है, ठीक है, आर्टिकल 265 में हमने सिर्फ इनकम की, टैक्स की बात की है, इनकम की बात की है। आर्टिकल 112 में आप इनकम एक्सपेंडिचर दोनों का ही लेआउट प्रेजेंट करोगे कि इतना हम इनकम कमाएंगे कंट्री से, इतना हम रेवेन्यू बनाएंगे और इतना हम खर्च करेंगे और यहाँ खर्च करेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 266 बोलता है कि आपको कोई भी एक्सपेंडिचर करना हो पार्लियामेंट की अप्रूवल की जरूरत है। 265 बोलता है आपको कोई भी टैक्स लेना है लोगों से, पार्लियामेंट के अप्रूवल की जरूरत है। और 112 बोलता है आपके पूरे साल भर में, यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, इसको इग्नोर मत करो, पूरे साल भर में जितना आपका खर्चा होना है या जितनी आप रिसीट बनाओगे लोगों से, वो सब आप उसका लेखा जोखा हमें समझाओ, बताओ कहां से इनकम आएगी, कहां खर्चा होगा। तो अभी क्लियर हो गए आर्टिकल 266, 112 एंड 65। 66 बात कर रहा है एक्सपेंडिचर की, 65 बात कर रहा है इनकम की। अभी समझ आ गई बात, तो जल्दी से बताओ। टैक्स इज इनकम ना, इट इज नॉट एक्सपेंस, फॉर द गवर्नमेंट इट इज इनकम। ओके, तो यहां तक पॉइंट्स क्लियर हो गए सभी को, ऑल राइट। तो ये था आपका पॉइंट, बेसिक जो बजट की रिक्वायरमेंट्स है। अब बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जो कि है FRBM एक्ट। व्हाट इज दिस FRBM एक्ट? इट इज फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। राइट इट डाउन, इट इज द फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, ठीक है। ये है आपका FRBM एक्ट, बजट मैनेजमेंट एक्ट, ऑल राइट। अब इसको पास कब किया गया था? इसको 2003 में पास किया गया था। इट वॉज पास्ड इन द ईयर 2003। वाई? द क्वेश्चन इज वाई। द सिंपल आंसर होगा फॉर बेटर बजट मैनेजमेंट। देखो बजट मैनेजमेंट है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबली इफ यू आर मैनेजिंग द बजट, फॉर दैट वी नीड सम रेगुलेशंस, दैट इज FRBM एक्ट, ठीक है। तो राइट इट डाउन, फॉर बेटर बजट मैनेजमेंट। अगर आपसे कोई लेमैन टर्म में समझे, पूछना चाहे कि भाई ये FRBM एक्ट न्यूज में रहता है, क्यों है ये न्यूज में, वाई इट इज इन न्यूज ऑल द टाइम? इट इज फॉर योर बजट मैनेजमेंट, एंड व्हेन द बजट एंड सर्वे आर पास, दे आर रिलीज्ड, FRBM act is always in the news and at that period of time. Why? Because for managing the budget responsibly. So this act provided for certain documents to be tabled in the parliament. इस एक्ट के तहत ना आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको पार्लियामेंट में प्रेजेंट करने होते हैं, ठीक है। यू हैव टू प्रेजेंट सम डॉक्यूमेंट्स इन द पार्लियामेंट बिकॉज दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट, ओके। अलॉन्ग विद द बजट यू हैव टू अटैच सम डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो। सो व्हाट आर द बजट डॉक्यूमेंट्स? अब ये बजट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं ये पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स विच आर प्रेजेंटेड अलॉन्ग विद द बजट, ठीक है, अलॉन्ग विद बजट इन द parliament according to the FRBM act, according to the FRBM act, okay. So first document is annual financial statement as per article 112. As per article 112 आपको annual financial statement budget speech के साथ साथ ये प्रोवाइड करना होता है। Then you have to provide the next document is the demands for grants. अगर आपको कोई ग्रांट चाहिए, ठीक है, या किसी स्टेट को सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई ग्रांट चाहिए, तो उसकी डिमांड से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है वो प्रेजेंट करेंगे। इट इज नोन एज DG एंड इट इज प्रेजेंटेड अंडर आर्टिकल 113। देन वी हैव द अप्रोप्रिएशन बिल। हमने सर्वे की क्लास में पढ़ा था अप्रोप्रिएशन बिल, वी स्टडीड दिस अप्रोप्रिएशन बिल इन द सर्वे क्लास ऑल्सो। सो अप्रोप्रिएशन बिल, इट इज प्रेजेंटेड अंडर आर्टिकल 114 सबसेक्शन 3। देन वी प्रेजेंट द फाइनेंस बिल, ठीक है, फिर हम प्रेजेंट करते हैं फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल इज प्रेजेंटेड अंडर आर्टिकल 110 सबसेक्शन A, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया? तो ये आपके डिफरेंट आपके बिल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको प्रेजेंट किया जाता है। इसी के अलावा हम प्रेजेंट करते हैं मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द प्रोविजंस इन द फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल में जो आपके प्रोविजंस होते हैं ना, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एक मेमोरेंडम भी सेपरेटली प्रेजेंट करते हैं
पार्लियामेंट में. वी ऑल्सो प्रेजेंट अ मेमोरेंडम विच एक्सप्लेन्स ऑल द प्रोविजंस इन डिटेल अबाउट द फाइनेंस बिल. ठीक है. देन वी ऑल्सो प्रेजेंट द फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट. इन द लास्ट क्लास वी डिस्कस द फिस्कल पॉलिसी. हमने लास्ट क्लास में फिस्कल पॉलिसी डिस्कस किया था, याद है आप लोगों को? रिमेंबर. So fiscal policy statement is also presented. Then highlights of the budget which you see in the PIB, Press Information Bureau में आप पढ़ते हो ना बजट्स के हाईलाइट. ठीक है. तो वो हाईलाइट्स भी प्रेजेंट किए जाते हैं, फिर उनको हम PIB में अपलोड करते हैं. द गवर्नमेंट अपलोड्स दैट हाईलाइट इन द PIB ऑल्सो. Okay, so these are the major documents which are presented along with the survey, along with the budget in the parliament. ये आपके major documents है जो प्रेजेंट किए जाते हैं. यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया तो जल्दी से बताएं. ठीक है. इफ द पॉइंट इज क्लियर प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ऑल राइट. ठीक है. लिख लिया सबने? नोट डाउन कर लिया यहां तक? ओके. अब इसके अंदर फाइनेंस बिल तो हमें पता है क्या है. द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज दिस अप्रोप्रिएशन बिल? इस बिल के ऊपर ना प्रीलिम्स में काफी बार क्वेश्चंस आ चुके हैं. इवन इन 2017, 18 क्वेश्चंस हैव बीन रिपीटेड. ठीक है. सो व्हाट इज द अप्रोप्रिएशन बिल? अब ये अप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है ये समझ लेते हैं. ठीक है. सो आई एम टेकिंग अ नेक्स्ट स्लाइड फॉर दैट. सो यू कैन ऑल्सो राइट दिस हेडिंग. आप ये हेडिंग लिख सकते हो अबाउट द अप्रोप्रिएशन बिल. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स. ठीक है. सो अप्रोप्रिएशन बिल ना एक तरीके का मनी बिल होता है. इट इज अ काइंड ऑफ मनी बिल दैट अलाउज द गवर्नमेंट, राइट इट डाउन, दैट अलाउज द गवर्नमेंट टू विड्रॉ द फंड्स. अब देखो आपने बजट प्रेजेंट कर दिया, आपने बोल दिया हमें इतना खर्चा होगा इस साल में. वो खर्चे के लिए पैसे कहां से लोगे, कैसे लोगे? यू हैव प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट दैट दिस इज द एक्सपेंडिचर दैट वी आर गोइंग टू इनकर. Then from where are you going to take the money? How you are going to take the money? सिर्फ प्रेजेंट करने से बात खत्म थोड़ी हो जाती है. You have presented and things are over. No, you have to present the appropriation bill also. आपको ये appropriation bill भी तो देना पड़ेगा भाई. ठीक है. बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आप प्रेजेंट करोगे फिर पैसा मिलेगा. समझ रहे हो? सो अप्रोप्रिएशन बिल इज अ मनी बिल. ठीक है. दैट अलाउज द गवर्नमेंट टू विड्रॉ द फंड्स फ्रॉम, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कहां से विड्रॉ करते हैं? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड, पब्लिक अकाउंट्स, ये 3 फंड्स पढ़े थे ना लास्ट क्लास में. इन द लास्ट क्लास वी स्टडीड दीज 3 फंड्स, राइट? सो द मनी बिल इट अलाउज द गवर्नमेंट टू विड्रॉ फंड्स फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. व्हाई? टू मीट, राइट इट डाउन, टू मीट इट्स एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, और यू कैन से कोर्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर. पूरे एक 12 साल में, 12 महीने में जितना भी खर्चा करना है, जो रेगुलर डे टू डे फंक्शनिंग का खर्चा है, इस एक आपके पीरियड में, फाइनेंशियल ईयर में 12 महीने में आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालोगे. थ्रू व्हाट? थ्रू द अप्रोप्रिएशन बिल विच इज अ काइंड ऑफ मनी बिल. एंड एज पर आर्टिकल 114 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमने क्या पढ़ा? आर्टिकल 114 इससे रिलेटेड है. अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल गवर्नमेंट कैन विड्रॉ मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया only after receiving approval of the parliament. Okay, point clear हो गया यहाँ तक सभी को? So this is basically an appropriation bill. ये बात याद रखनी है. अब बात आती है कि what is the procedure which is followed. अब ये appropriation bill जब आप देते हो, ठीक है, प्रस्तुत करते हो, क्या procedures फॉलो करने पड़ते हैं? First of all, you have to introduce the appropriation bill. You have to let the parliament know that this is a requirement, this much amount we need to take out from the consolidated fund of India. Okay, so for that the government introduces, पहला procedure है, step number 1 is that government introduces the appropriation bill in the lower house of parliament. ठीक है. लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में गवर्नमेंट क्या करती है? अप्रोप्रिएशन बिल को इंट्रोड्यूस कराती है. आफ्टर द डिस्कशन इज डन ऑन द बजट प्रपोजल, ठीक है, वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स इज डन, देन गवर्नमेंट विल इंट्रोड्यूस द अप्रोप्रिएशन बिल इन लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट. गवर्नमेंट ने पहले ऐलान कर दिया कि इतना खर्चा होगा. अब पैसा निकलवाने के लिए गवर्नमेंट अप्रोप्रिएशन बिल को इंट्रोड्यूस कराएगी. ठीक है. पॉइंट क्लियर हो गया. अब बात आती है सेकेंड स्टेप. ठीक है. तो यहां सेकेंड स्टेप आ जाता है दैट अप्रोप्रिएशन बिल इज फर्स्ट पास्ड बाय लोकसभा. ठीक है. कौन पास करता है सबसे पहले इसको? लोकसभा इसको पास करता है. एंड देन इट इज सेंट टू राज्यसभा. फिर कहां भेजा जाएगा? राज्यसभा में भेजा जाएगा. नाउ दिस राज्यसभा हैज द पावर, राइट इट डाउन, इट हैज द पावर टू recommend any amendments in the bill.
यानी कि राज्यसभा के पास ये पावर है कि वो कोई भी अमेंडमेंट बिल में इंट्रोड्यूस करा सकती है या रेकमेंड कर सकती है कि भाई ये चेंजेस होने चाहिए। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? चेंजेस, राइट? सो दिस चेंज इज रिक्वायर्ड इन दिस बिल। इतना पैसा नहीं, इतना कट करके पैसा हम आपको देंगे। ये सारे पावर्स राज्यसभा के पास हैं रेकमेंड करने के। बट इट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ लोकसभा टू एक्सेप्ट इट और टू रिजेक्ट इट। लोकसभा की मर्जी है कि राज्यसभा की रेकमेंडेशन को तुम एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो। सो लोकसभा हैज द पावर टू एक्सेप्ट और टू रिजेक्ट दिस रिकमेंडेशन। ठीक है, इस सुझाव को, रिकमेंडेशन का मतलब क्या होता है? सुझाव होता है। ठीक है, सो अप्रोप्रिएशन बिल क्या पढ़ा था हमने? इट इज अ मनी बिल। पढ़ा था कि नहीं? ये पढ़ा था। अप्रोप्रिएशन बिल इज अ मनी बिल। इट अलाउज गवर्नमेंट टू विड्रॉ फंड्स। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा है? एंड राज्यसभा इसके पास जब जाएगा तो राज्यसभा, यस लोकसभा की मेजोरिटी होती है, आपको पता ही है सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ बैठती है। तो राज्यसभा के पास इतनी पावर है कि वो बस रिकमेंडेशन देगा, सुझाव देगा कि ये चेंजेस होने चाहिए। लोकसभा एक्सेप्ट करे ना करे उनकी मर्जी। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया? अब द यूनिक फीचर ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल इज इट्स ऑटोमेटिक रिपील क्लॉज। इस अप्रोप्रिएशन बिल में ना, इन दिस AB इट हैज अ रिपील क्लॉज। ठीक है, यहाँ पर इसके पास एक रिपील क्लॉज होता है विच इज ऑटोमेटिक रिपील क्लॉज। यहाँ पर लिख सकते हो आप, इट इज एन ऑटोमेटिक रिपील क्लॉज वेयर बाय द एक्ट गेट्स रिपील्ड बाय इटसेल्फ आफ्टर इट मीट्स इट्स स्टैट्यूटरी पर्पस। अब आपने अप्रोप्रिएशन बिल पास करवाया, एक बार वो पारित हो गया, एक बार आपको पैसा मिल गया, वो जो एक्ट था वो अपने आप ही रिपील हो जाएगा। काम हो गया, बाद में वो अपने आप रिपील हो जाएगा, लागू नहीं रहेगा। एक बार पैसा ले लिया तो 10 बार उसी एक्ट को यूज करके पैसा नहीं ले सकते। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया? यहां तक अगर पॉइंट क्लियर तो जल्दी से मुझे बता दीजिए। ठीक है, बिल, जब हम इस अप्रोप्रिएशन बिल की बात करते हैं ना, तो क्या सिंपल मेजोरिटी की जरूरत होती है इसमें? क्योंकि ये एक तरीके का मनी बिल है ना, इट्स अ काइंड ऑफ मनी बिल। सो वेदर सिंपल मेजोरिटी इज यूज्ड। ठीक है, देखो, टू पास ऑर्डिनरी बिल, टू पास मनी बिल, टू पास फाइनेंशियल बिल, टू पास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है, इट रिक्वायर्स ओनली सिंपल मेजोरिटी एट स्टेट लेजिस्लेचर। इसमें सिंपल मेजोरिटी की जरूरत होती है। एब्सोल्यूट मेजोरिटी होती है, सिंपल मेजोरिटी होती है। ओनली सिंपल मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड टू पास दिस मनी बिल। फाइनेंस बिल हो गया, मनी बिल हो गया, ऑर्डिनरी बिल हो गया, सिंपल मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं मेजोरिटीज की, व्हेन वी टॉक अबाउट मेजोरिटीज, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेजोरिटी, सिंपल, एब्सोल्यूट, इफेक्टिव। ठीक है, तो अलग अलग तरीके की मेजोरिटी होती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन्ड है कि भैया लोगों ने पारित किया, जो भी हाउस की स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से पारित की जाएगा कोई भी बिल, कोई भी एक्ट। ठीक है, तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मेजोरिटीज? किस किस तरीके की मेजोरिटीज होती हैं? देयर आर 4 बेसिक टाइप्स ऑफ मेजोरिटी। ठीक है, फर्स्ट इज नोन एज एब्सोल्यूट मेजोरिटी, पहले को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट। सेकेंड इज नोन एज इफेक्टिव मेजोरिटी, देन थर्ड इज नोन एज simple majority, and there is a fourth kind also which is known as special majority. ठीक है, इसके भी फर्दर 4 टाइप्स होते हैं। ये चैप्टर आप पढ़ोगे इंडियन एम लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी। ठीक है, इंडियन पॉलिटी की जो किताब है एम लक्ष्मीकांत, उसमें आप पढ़ोगे ये मेजोरिटी के ऊपर चैप्टर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल व्हेन वी टॉक अबाउट एब्सोल्यूट मेजोरिटी, इट रेफर्स टू अ मेजोरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस, ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस। टोटल जो सदन की मेंबरशिप है, ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स से टोटल मेंबरशिप ऑफ लोकसभा लेट्स से इज 545, तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी व्हाट विल इट बी? इट मींस 50% ऑफ 545 प्लस 1 दैट इज 273, दैट विल बी एब्सोल्यूट मेजोरिटी। इसमें +1 हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका एब्सोल्यूट मेजोरिटी। टोटल मेंबरशिप उसका 50% + 1 दैट इज 273। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को? सो व्हाट आर द केसेस व्हेन द एब्सोल्यूट मेजोरिटी इज यूज्ड? इट इज यूज्ड इन द नॉर्मल बिजनेस ऑफ द पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर का जो नॉर्मल डे टू डे फंक्शनिंग होती है उसमें इस मेजोरिटी को यूज किया जाता है। और ड्यूरिंग द जनरल इलेक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट एट सेंटर एंड स्टेट्स, एब्सोल्यूट मेजोरिटी इज यूज्ड। ठीक है, देन वी हैव द इफेक्टिव मेजोरिटी। अब बात आती है इफेक्टिव मेजोरिटी की। सो इफेक्टिव मेजोरिटी इज द इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। Okay, that means more than 50% of effective strength of the house. For example, Rajya Sabha. For example, in Rajya Sabha, out of total strength of 245 members, if there are 45 vacancies,
टोटल आपकी कितनी स्ट्रेंथ है राज्यसभा की, मान लो 245 है, उसमें से 45 वेकेंसीज है यानी कि सीट खाली है, देन इफेक्टिव स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, इफेक्टिव स्ट्रेंथ विल बी 200. So effective majority will be, it will be 50% of 200 plus 1, that is 101. 50% 200 का plus 1, that is 101. Effective strength की मेजॉर 50%. ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे, जितने लोग मौजूद हैं और जितनी सीट्स खाली हैं उसको एलिमिनेट कर दो, 200 बचा, उसका 50% प्लस 1, दैट विल बी इफेक्टिव मेजॉरिटी. नाउ व्हेन व्हाट आर द केसेस इन विच इफेक्टिव मेजॉरिटी आर यूज्ड, द केसेस आर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इन राज्यसभा. आर्टिकल 67 सब क्लॉज बी, इसके तहत जब आप वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करते हो ना राज्यसभा से, तब आप इफेक्टिव मेजॉरिटी यूज करते हो. और रिमूवल ऑफ स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है, देन ऑल्सो यू रिक्वायर इफेक्टिव मेजॉरिटी. ठीक है, देन कम्स द सिंपल मेजॉरिटी. अब बात आती है देखो यहाँ पर सिंपल मेजॉरिटी की. सो इट रेफर्स टू द मेजॉरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स विच आर प्रेजेंट एंड वोटिंग, पी एंड वी. सदन में जितने लोग प्रेजेंट है और जितने लोग वोट कर रहे हैं उनका 50% प्लस 1. ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर्म ऑफ मेजॉरिटी, जो आप अभी मैंने आपको बताया अप्रोप्रिएशन बिल में भी यूज हो जाता है. ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को. ओके, नाउ कम्स दी स्पेशल मेजॉरिटी. अब देखो यहां पर हम पढ़ेंगे स्पेशल मेजॉरिटी को. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हैज फर्दर 4 टाइप्स. इसके बिना 4 टाइप्स हैं. ठीक है, सो ऑल टाइप्स ऑफ मेजॉरिटीज अदर देन द एब्सोल्यूट, इफेक्टिव और सिंपल आर नोन एज स्पेशल मेजॉरिटी. ठीक है, सारी टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी अदर देन यानी कि एब्सोल्यूट को हटा दो, इफेक्टिव को हटा दो, सिंपल को हटा दो, तो जो बची हुई मेजॉरिटीज हैं, टाइप्स हैं, वो स्पेशल मेजॉरिटी हो गया. ठीक है, टाइप 1 ओवर हियर, टाइप 1 आर्टिकल स्पेशल मेजॉरिटी एज पर आर्टिकल 249. देन टाइप 2 स्पेशल मेजॉरिटी एज पर आर्टिकल 368. 368 तो सभी को पता है. ठीक है, बताओ 368 के तहत क्या होता है. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट हैपेंस अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368. यस, वेरी गुड, अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वेरी गुड. देन टाइप 3 इट इज अ स्पेशल मेजॉरिटी. ओके, टाइप 3 स्पेशल मेजॉरिटी एज पर आर्टिकल 368 प्लस 50% स्टेट रैटिफिकेशन या स्टेट एक्सेप्टेंस. ठीक है, स्टेट रैटिफिकेशन बाय सिंपल मेजॉरिटी, दैट इज टाइप 3. ओके, यानी कि आर्टिकल 368 के तहत जो मेजॉरिटी हो रही है, ठीक है, जो अमेंडमेंट हो रही है, प्लस 50% स्टेट अप्रूवल बाय सिंपल मेजॉरिटी. देन कम्स द टाइप 4. दिस इज आर्टिकल 61 स्पेशल मेजॉरिटी एज पर आर्टिकल 61. ठीक है, तो डिटेल में हम इसको मेजॉरिटी की क्लास में पढ़ेंगे. आई विल कंडक्ट अ क्लास, स्पेशल क्लास फॉर स्पेशल मेजॉरिटी. ठीक है, फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी एंड इन डिटेल वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल दीज टाइप्स. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को. ऑल राइट, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द बजट. अभी हमने ना बजट के इंपॉर्टेंट प्रोविजनल, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स पढ़े हैं. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द actual budget. Now before we start with the budget, here's a small announcement for all of you. From 8th of February now, new batches are starting on Unacademy Plus. Okay, we have 6-month batch also, 1-year batch also. We have NCERT batches as well. I am going to take the NCERT batches from tomorrow. Class 6 to class 12 की साइंस एंड टेक की NCERT प्रीलिम्स के लिए विद करंट अफेयर्स 7 क्लासेस का सेशन होगा जो मैं कल से ले रही हूँ. शाम को 6 से 8 बजे की क्लास होगी. एवरी डे 2-hour क्लास विल बी देयर. So if you are interested in these batches, you can join Unacademy Plus today. You can take the subscription today and you can use the code SHARMA20. आप ये कोड यूज कर सकते हो to get 10% discount also. ठीक है, this is the code which you can use to achieve 10% discount on your Plus subscription. Okay, so all the batches are starting from 8th of Feb. Make sure that you subscribe before 8th Feb. एंड 20th Feb के बाद ना आपका डिस्काउंट 10% से 5% हो जाएगा, कम हो जाएगा. तो उससे पहले अगर सब्सक्रिप्शन लेते हो, ये कोड यूज करते हो, तो आपको एग्जैक्टली 10% डिस्काउंट मिलेगा. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन शुरू करते हैं अबाउट बजट. When we talk about budget, we know according to 112, Article 112, Union budget is referred to as annual financial statement.
एंड द बजट गोज थ्रू 6 स्टेजेस. ये आपको पॉइंट प्रीलिम्स के लिए याद रखना है, नॉट फॉर मेंस, फॉर प्रीलिम्स यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट. ओके, दैट बजट गोज थ्रू 6 स्टेजेस. फर्स्ट इट इज प्रेजेंटेड, देन डिस्कशन इज डन. आप लोग बजट स्पीच तो देखते ही होगे. Being UPSC aspirants, you must have seen the budget speech. ठीक है, all the serious UPSC aspirants, the first thing that they do is listen to the budget speech. सभी serious UPSC aspirants पहली चीज क्या करते हैं, बजट स्पीच को सुनते हैं along with the document, right? Then journal discussion is done. Then scrutiny by departmental committees. That means all the different departments, ठीक है, जिनको पैसा allocate होना है वो scrutinize करते हैं बजट को. If there is any flaw or any drawback in the budget, they highlight it. ओके, देन वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स. किसी स्टेट को ग्रांट चाहिए तो उसके ऊपर वोट होता है कि ये ग्रांट दिया जाए या नहीं दिया जाए, शुड दिस ग्रांट बी गिवन और नॉट. पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल, ये हमने पढ़ लिया. पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल, दैट ऑल्सो वी हैव स्टडीड. दीज आर द 6 स्टेजेस. अब ये बताओ, अप्रोप्रिएशन बिल, फाइनेंस बिल, डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, ठीक है, जब ये पास होते हैं, मान लो लेट्स से व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट अप्रोप्रिएशन बिल, वंस इट इज एक्सेप्टेड बाय द पार्लियामेंट, देन इट एंड्स और इट कंटिन्यूज. क्या ये वहीं खत्म हो जाता है अप्रोप्रिएशन बिल, रिपील हो जाता है एक बार एक्सेप्ट कर लें, या कंटिन्यूड रहता है नेक्स्ट सेशन तक? यस, इट एंड्स. ठीक है, सो इट एंड्स. हमने ऑटोमेटिक रिपील क्लॉज पढ़ा था ना अभी स्टार्टिंग में. व्हाट डिड वी स्टडी? वी स्टडीड द ऑटोमेटिक रिपील क्लॉज. This clause says that once the appropriation bill is accepted, it is passed, it is approved, it automatically repeals. ये continue नहीं होता, ये repeal हो जाता है. ठीक है, point clear हो गया? चलो. So when we talk about the budget division of the Department of Economic Affairs and Finance Ministry, it is the nodal body, that is the principal body which is responsible for preparing the budget. Budget को कौन prepare करता है? Department of Economic Affairs का budget division. And annual financial statement we studied, it is the estimated, not the final receipt or expenditure. ऐसा नहीं है कि एक बार बजट में जो एक्सपेंडिचर लिख दिया कि इतना खर्चा होगा तो उतना ही डॉट खर्चा होगा, नहीं. इट इज एस्टिमेटेड. गवर्नमेंट अपनी तरफ से एक एस्टिमेट देता है कि इतना हमें पैसे की जरूरत है और इतनी इनकम होगी साल भर में. ठीक है, अब कोई अचानक से कोई पैंडेमिक आ जाता है या कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है तो बजट ऊपर नीचे भी हो जाता है. ठीक है, जैसे हम अपने घर का बजट तैयार करते हैं ना, बीच में अगर मान लो कि कोई अनहोनी हो जाती है, अनफोर्सीन इवेंट हो जाता है या कोई बहुत बड़ा खर्चा आ जाता है तो बजट बिगड़ जाता है ना. तो ऐसा नहीं है कि बजट एकदम फिक्स है, इतना दिया है गवर्नमेंट ने बोला है तो इतना ही होगा, नहीं. एस्टिमेट होता है. ठीक है, बट दैट एस्टिमेट इज ऑल्सो वेरी एक्यूरेट. ऐसा नहीं कि हवा में एस्टिमेट होता है, इट इज वेरी एक्यूरेट. ओके, सो इट इज एस्टिमेट ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट. हमने ये 2 टर्म्स कल की क्लास में पढ़े थे ना. इन द लास्ट क्लास आई एक्सप्लेन यू डिफरेंट टर्म्स विच आर एसोसिएटेड विद द बजट, राइट. तो आपको याद होगा कि क्या है कैपिटल रिसीट एंड व्हाट इज रेवेन्यू रिसीट, व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट, विच व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी, राइट. तो हमने FRBM एक्ट भी पढ़ लिया. वी हैव स्टडीड द FRBM एक्ट ऑल्सो. ठीक है, नाउ यहां पर हमें शुरू करना है. वी आर गोइंग टू स्टार्ट with the first important sector in the budget and that is related to health and well-being. ये जो सेक्टर है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज बजट में, वो है आपका हेल्थ एंड वेलबींग सेक्टर, बिकॉज इसी पे फोकस रहा है इस साल के सर्वे और बजट में. इन दिस ईयर सर्वे एंड बजट दे हैव focused more on your health and health infrastructure, healthcare services. Why? Because of coronavirus. This was a kind of pandemic that shook इंडिया टू इट्स कोर. बिल्कुल कोर तक सभी कंट्रीज को, ना कि इंडिया को, सभी कंट्रीज को इसने हिला दिया, राइट. एंड दिस पैंडेमिक शिफ्टेड आवर अटेंशन टुवर्ड्स द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर विच वी वर इग्नोरिंग सिंस सो लॉन्ग. कितने समय से हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे थे. तो यहाँ हमारा अटेंशन फोकस रीशिफ्ट हुआ है, रीडायरेक्ट हुआ है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ. सो दिस वॉज द फर्स्ट एवर डिजिटल यूनियन बजट. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा है. एंड इट इज बेस्ड ऑन 6 पिलर्स. 6 pillars is, first is health and well-being. You have to remember this for prelims 2021. ठीक है. Now for physical and financial capital in infrastructure, inclusive development for aspirational India, reinvigorating human capital, innovation and research and development, and minimum government, maximum governance. This point is always fixed in every year's budget under the Modi government. मोदी गवर्नमेंट के अंदर मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, ये पॉइंट तो हमेशा ही हाईलाइटेड रहता है. आप इस पॉइंट को इग्नोर कर ही नहीं सकते क्योंकि ये उनका नारा है, ये उनका मोटो है. देयर मोटो इज मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस. इतना तो आप पढ़ ही रहे होगे 1 साल से न्यूज में. ठीक है, सो इफ यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर यू मस्ट बी सीइंग दिस न्यूज सिंस द टाइम मोदी गवर्नमेंट वाज इन न्यूज. सो दिस सेक्शन डील्स विद द प्रपोजल फॉर द हेल्थ एंड वेलबींग सेक्टर. ठीक है,
अब यहाँ पर आप देखोगे व्हाट आर द मेजर स्टेप्स बीइंग टेकन फॉर इम्प्रूविंग हेल्थ एंड वेलबींग। तो बजट में कौन कौन से स्टेप्स मेंशन किए गए हैं। पहला स्टेप तो आपका वैक्सीन से रिलेटेड ही होगा, ठीक है। सो ₹35,000 करोड़ फॉर कोविड-19 वैक्सीन इन बजट एक्सपेंडिचर हैज बीन लिस्टेड। आपको ना फिगर्स थोड़े से फोकस करना है फिगर्स पे, क्योंकि ये फिगर्स आपको कोट करने पड़ते हैं मेंस आंसर राइटिंग में, ठीक है। तो एसए में, जीएस पेपर 3 में आपको फिगर्स कोट करने पड़ेंगे। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो मेक श्योर एक सिंसियर सीरियस स्टूडेंट की तरह तुम न्यूज़पेपर रोज पढ़ रहे हो, तभी माना जाएगा कि तुम थोड़े से सिंसियर हो। और सेकेंडली तुम बजट पर फोकस करते हो। अगर आप 2021 की तैयारी कर रहे हो तो इस साल का बजट बिल्कुल छोड़ना मत, बहुत अच्छे से डिटेल में अपने दिमाग में बिठा लेना। यहाँ तक कि जो फंड्स रखे गए हैं उनको भी दिमाग में बिठा लेना। एज इट इज नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, वो तो कोई भी याद नहीं रख सकता, बट हाँ एस्टिमेट याद रखना, अराउंड 34, 35 इतना याद रखना, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो रहा है, क्योंकि ये नंबर्स, ये फैक्ट्स फिगर्स तुमको जीएस पेपर 3 में कोट करने पड़ते हैं, क्योंकि वो फैक्चुअल पेपर होता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, वहां कहानी नहीं लिख सकते हो, ठीक है। सो 35,000 करोड़ हैज बीन सेट असाइड फॉर दी वैक्सीन्स, ठीक है। एंड मेड इन इंडिया निमोकॉकल वैक्सीन इज गोइंग टू बी रोल्ड आउट अक्रॉस द कंट्री। निमोकॉकल वैक्सीन के ऊपर मैंने अलग से क्लास बनाई थी, अगर आपने देखा हो, ठीक है, वो क्लासेस यूट्यूब चैनल पर, ओवर हियर दिस इज द यूट्यूब चैनल अर्पिता शर्मा क्लासेस, ठीक है, ये नाम है। इसके ऊपर अलग से सेपरेटली 15 मिनट की एक क्लास तैयार की गई है आप लोगों के लिए, विच इज ऑन निमोकॉकल वैक्सीन, ठीक है। आई विल अपलोड इट ऑन माई टेलीग्राम चैनल ऑल्सो, दैट इज सिंप्लीफाइंग यूपीएससी विद ईज। ये है टेलीग्राम चैनल सिंप्लीफाइंग यूपीएससी विद ईज, वहां पर क्लास पीडीएफ भी है और क्लास की वीडियो है, वो मैं अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो निमोकॉकल वैक्सीन जो है उनके मेड इन इंडिया निमोकॉकल वैक्सीन विल बी रोल्ड आउट, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया। देन वी हैव फॉर द बजट आउटले फॉर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वी हैव इंक्रीज्ड द स्पेंडिंग, यानी कि हेल्थ और वेलबींग पर हमने अपनी स्पेंडिंग ना इंक्रीज कर दी है। देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 137%। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। यहाँ पर आपको एज इट इज स्टेटमेंट दे देंगे बजट के ऊपर कि दैट गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द आउटले ऑन हेल्थ एंड वेलबींग बाय 137%, ठीक है। सो दैट इफ यू रिमेंबर दिस फिगर देन यू कैन आंसर दैट क्वेश्चन, वरना फिर या तो गलत कर दोगे या छोड़ के आना पड़ेगा। तो मेक श्योर ये आप याद रखो कि कितना इंक्रीज हुआ है, इतना फिगर तो आपको याद रखना है, ठीक है। देन व्हेन वी टॉक अबाउट द हेल्थ सिस्टम ओवर हियर यू विल सी दैट प्राइम मिनिस्टर्स आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, that is Atmanirbhar self-reliant, Swasth means healthy, Bharat means India. So a new centrally sponsored scheme is going to be launched. Now schemes तो आपके prelims के लिए must होते हैं, mains के लिए must होता है, interview के लिए must होता है, ठीक है। They can ask you about these schemes in your interview also, in your prelims, mains, तीनों स्टेज में पूछा जाएगा, और इंटरव्यू में तो डेफिनेटली पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि अभी ये लॉन्च होगी स्कीम, द स्कीम इज गोइंग टू बी लॉन्च नाउ। सो दे कैन आस्क यू इन 2021 इंटरव्यू, 2022 पूछा जा सकता है, और इवन 2023, बिकॉज ये नई स्कीम होगी ना आप लोगों के लिए, तो ये याद रखना है, इट इज इन एडिशन टू नेशनल हेल्थ मिशन। So that means that shows that government is shifting its focus towards the health infrastructure. Government अपना focus अब health infrastructure के towards shift कर रहा है। Then when we talk about nutrition, Mission Poshan 2.0 to be launched to improve nutritional outcomes across 112 aspirational districts. ठीक है, तो आप देखोगे मिशन पोषण लॉन्च ऑलरेडी हो रखा था, इसका न्यू वर्जन लॉन्च हो रहा है, दैट इज 2.0। देन यूनिवर्सल कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई, जल जीवन मिशन पढ़ा था हमने, राइट। नाउ रूरल पढ़ा था हमने, जल जीवन मिशन रूरल। नाउ अर्बन इज गोइंग टू बी लॉन्च्ड सून to bring safe water to 2.86 crore households through tap connection. Swachh Bharat, Swasth Bharat. Swachh means clean India, Swasth means healthy India. So now in urban, rural का तो लॉन्च हो चुका है, अर्बन का लॉन्च हो रहा है 2.0, इसका वर्जन 2.0 लॉन्च हो रहा है इन द अर्बन एरियाज ऑल्सो। सो बेसिकली नाउ गवर्नमेंट हैज रियलाइज्ड that maintaining health hygiene in just rural area is not important, in both rural and urban area is important, क्योंकि this pandemic did not just impact the rural area, it also impacted the urban area, ठीक है। then clean air, rupees 2217 crore to tackle air pollution for 42 urban centers with a million plus population. Scrapping policy, voluntary vehicle scrapping policy to phase out old and unfit vehicles, जितने भी पुराने unfit vehicles है because of which pollution happens, pollution increases, so those vehicles will be scrapped out, will be removed. For that voluntary vehicle scrapping policy is going to be ruled out, ठीक है, is going to be rolled out, phased out, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो रहा है यहाँ तक सभी को। तो यहाँ आप देखोगे ओवर हियर यू विल सी
दैट व्हाट इज प्राइम मिनिस्टर आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। अब ये आपका प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सारी योजना, ये स्कीम्स, एक्ट्स ना प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। So here this is a new centrally sponsored scheme with an expenditure outlay of 64,180 crore over 6 years. Important point. Then intervention is कि रूरल और अर्बन वेलनेस और हेल्थ सेंटर्स होते हैं ना, उनको तैयार किया जाएगा, उनका सपोर्ट लिया जाएगा। इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स बनाए जाएंगे। देखो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे अब खर्चा बढ़ा रही है गवर्नमेंट। जैसे ही ये कोविड-19 पैंडेमिक आया है, रिसर्च डेवलपमेंट पे खर्चा बढ़ रहा है। उससे पहले R&D पे इतना खर्चा नहीं होता था, अब हो रहा है, बिकॉज मेडिसिन आर बीइंग रिसर्च्ड आउट ना, मेडिसिन को रिसर्च कर रहे हैं, तो समझ आ रहा है कि भैया कुछ भी हो सकता है आगे, एनीथिंग कैन हैपन इन द फ्यूचर, वी नीड टू स्केल अप आवर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। ओके, सो इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स विल बी established. Then critical care hospital blocks in 602 districts will be established. ठीक है पॉइंट। सो यहाँ पर 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स विल बी established, 2 मोबाइल हॉस्पिटल्स, यानी कि जो आपके लोगों तक पहुंच सके। ओके, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर वन हेल्थ, अ रीजनल रिसर्च प्लेटफॉर्म फॉर WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन, 9 बायोसेफ्टी लेवल 3 लैब्स, 4 रीजनल नेशनल इंस्टीट्यूट्स फॉर वायरोलॉजी। देखो यहाँ पर जब से कोविड-19 ये फैला है, वायरोलॉजी पर रिसर्च इंक्रीज कर दिया है और इसी के इंस्टीट्यूट्स को भी अब स्टैब्लिश किया जा रहा है। ठीक है, सो दीज आर दी वंडरफुल you can say initiatives which the government has taken under Prime Minister Atmanirbhar Swasth Bharat Yojana. Okay, point clear हो गया यहाँ तक? Okay, तो यहाँ पर आप देखोगे now the next highlight is regarding infrastructure, that was for well-being or wellness sector. Now when we talk about infrastructure, I told you about production linked incentive scheme in the last class, in the economic survey class. Economic survey की क्लास में हमने समझा था ना PLI के बारे में। So here 1.97 lakh crore in next 5 years is being estimated as being kept aside for PLI schemes in 13 sectors. This is for आत्मनिर्भर भारत, ये जो सेल्फ रिलायंट भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया की स्कीम लॉन्च हुई है, उसी के तहत 1.97 लाख करोड़ एक एस्टिमेट अमाउंट साइड रखा गया है नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए फॉर टू बी यूटिलाइज्ड इन द PLI schemes. Okay. Then when we talk about textiles, mega investment textile parks, that is known as Mitra scheme, is to be introduced. अब Mitra scheme आ गई है यहाँ पर. It aims at making textile industry globally competitive, attract large investment from outside also, from domestic arena also and outside also, boost employment generation and exports. So feature is that under this Mitra scheme, 7 textile parks will be established over 3 years. And to create world-class infrastructure with plug-and-play facilities to enable create global champions in exports. जितना भी टैलेंट है उसको टैप किया जाएगा टेक्सटाइल सेक्टर में, to attract investments from foreign also and from domestic arena also. Point clear हो रहा है? ठीक है? Infrastructural institutional structures will be created. So for that, development financial institutions DFI will be instituted, will be established. ठीक है? फिर यहाँ पर क्या होगा, और एसेट्स को मोनेटाइज किया जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर के शेयर को इंक्रीज किया जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों यूज होता है? फिजिकल एसेट्स को तैयार करने के लिए, टू स्टैब्लिश फिजिकल एसेट्स, दैट मीन्स रोड्स, हाईवेज, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर दैट कैपिटल एक्सपेंडिचर इज क्रिएटेड। पॉइंट क्लियर हो गया सभी को यहाँ पर? ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? तो यहाँ पर आप देखोगे फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर दी अमाउंट हैज बीन इंक्रीज, कैपिटल एक्सपेंडिचर का अमाउंट इंक्रीज किया गया है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे अमाउंट इंक्रीज किया गया है, मेट्रो रेल, मेट्रो लाइट एंड मेट्रो न्यू टेक्नोलॉजीज विल बी यूज्ड. सो व्हाट इज मेट्रो लाइट एंड मेट्रो न्यू? Let us understand that for prelims. Metro New, it's a mass rapid transit system providing low cost, energy efficient, eco-friendly urban transport solutions. Tier 2, Tier 3 cities होती है ना, उनके लिए urban transport solutions, eco-friendly urban transport launch करने के लिए Metro New को तैयार किया गया है, which is a low cost, energy efficient transport system. ठीक है? So drawing traction power from overhead wires, Metro New will not run on track but on road. ऊपर वायर्स होंगी, उससे कनेक्टेड होके ये रोड्स पे जो बसेस हैं ये ट्रैवल करेंगी. ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया. एंड ऐसा कहा जा रहा है कुल अराउंड द डिमांड इज अराउंड 8000 पैसेंजर्स. ठीक है, तो वन वे का जो जहाँ पर 8000 पैसेंजर्स की वन वे डिमांड होती है वहाँ उन प्लेसेस के लिए मेट्रो न्यू की टेक्नोलॉजी सूटेबल होगी.
ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया. सो मेट्रो न्यू सिस्टम्स, दे आर लाइटर, दे आर स्मॉलर देन कन्वेंशनल मेट्रो ट्रेन्स विच यू कैन सी ऑन द मेट्रो सिटीज ऑल्सो, and they cost about 25% of conventional systems, but they have the similar facilities that the metros provide. जो metros provide करती है वैसी ही facilities metro new में भी होता है. ठीक है, यहाँ तक point clear हो गया सभी को. Okay, ma'am, we need to read economic survey and budget in detail only of the year in which we are giving exam. Yes, जिस year में आप exam दे रहे हो उसका आपको detail में पढ़ना है. That is correct. Okay, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया. सो दिस वॉज पार्ट 1 ऑफ योर बजट. नेक्स्ट क्लास होगी आपकी 8th of February 2021 पार्ट 2 इन विच डिटेल क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में हम बजट को पढ़ने वाले हैं. इन क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड इन प्रीलिम्स एंड मेंस, एंड देन इन डिटेल वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड बजट. Okay, and it will be at 10 AM in the morning on Unacademy Plus free lecture. The link is also given below in the description box. Link आपको Telegram channel पे मिल जाएगा. You will be getting the link in the Telegram channel. Simplifying UPSC with ease. ठीक है, and also do not forget to enroll in the Unacademy Combat that is going to take place tomorrow 11 AM in the morning. कल सुबह 11 बजे ये फ्री टेस्ट होने वाला है in which you can stand a chance to win amazing prizes. 3 months का प्लस का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा यहाँ पर अगर आप 1st to 3rd रैंक में आते हो. ठीक है, सो यूज कोड अर्पिता10 एंड इनरोल इन दिस अनअकैडमी कॉम्बैट ऑन द लर्निंग ऐप टुडे बिकॉज टुमारो एट 11 AM द टेस्ट विल टेक प्लेस. ओके, so on this note we are wrapping up the session. Thank you everyone for participating in the class. You'll get the class PDF on the Telegram channel. Okay.